Have you imagined on Christmas afternoon there is lots of food on the table? I don't know how Christmas celebrated here in Uttarakhand in Dehradun, but what are the dishes? Can you imagine? और अगर हम देखा जाए तो क्रिसमस की जो दोपहर होती है तो हमारी मेज़ों पे बहुत सारे भोजन की चीज़ें होती हैं. मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे लोग मनाते हैं, पर वो क्या भोजन की चीज़ें हो सकती हैं. Lots of food. ढेर सारा भोजन. There is tandoori. और वहाँ तंदूरी चिकन होगा. There is biryani. वहाँ पे बिरयानी होगी. There is, other perhaps mutton curry and naan and roti and butter naan. I don't know what all. और मटन करी, नान और बहुत सारी चीज़ें. और In abroad there is turkey, there is potatoes, there is sweet potatoes, there is, lots of Christmas cake. और विदेश में है टर्की होगा, स्वीट पोटैटो होगा, क्रिसमस केक होगा. And you eat all of that. और जब आप ये सब खाते हैं, You know how you keep an appetite for that Sunday afternoon. और कैसे आपने अपने आप को मतलब अपना पेट खाली रख रखा होता है वो सारी चीजें खाने that के लिए. Christmas lunch. वो जो लंच होता है क्रिसमस Or का. for our brothers from Kerala, the Onam meal. There is so many types of dishes. और वो हमारे भाई बहन जो केरला से हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे भोजन पदार्थ होते And हैं. you are waiting for that lunch. और आप उस लंच का इंतजार कर रहे होते हैं. And you ate all full up to your stomach. और आप पूरे यहाँ तक उस खाने को खाते हैं. And right after you visit someone else's house and they are offering the same Christmas meal again before you, same Onam meal before you. और What फिर would आप you किसी think? और के घर जाएं और आपको फिर से वही भोजन मिले खाने के लिए, फिर क्या Would you करेंगे? again start and eat again like that? और क्या आप फिर से वैसे खा पाएंगे? Will you be able to eat? क्या आप खा पाएंगे फिर You से? will say, no, I'm full. आप कहेंगे नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है. Are you able to understand? क्या आप ये बात समझ रहे हैं? But if think opposite, पर अगर आप उसका विपरीत सोचें, when you're fasting, आपका उपवास हो, what do you always thinking about? आप हर वक्त किस चीज के बारे में What's सोच रहे होते coming हैं? in your mind? क्या चीज बार बार आपके दिमाग में आ रही होती है? Food. खाना. In fact, on the fasting day, और बल्कि उपवास के दिन I खासकर don't know what happens to me. मुझे पता नहीं क्या हो जाता All है. of a sudden, on the same day, I'm craving so many things. और उस दिन मेरा मन करता है मैं इतनी सारी चीजें I'm खाने thinking का. about the soup. मैं सूप के बारे में I'm सोच रहा thinking होता about the momos. मैं मोमोज के बारे में सोच रहा I'm होता हूँ. thinking about everything that I can eat that evening. उस दिन मैं ये सोचता हूँ कि शाम को मैं जो खा सकता हूँ मैं वो खा लूँ. You see, what about in relationship with the hunger for God? और उस रिश्ते के बारे में क्या, जो हमारी भूख है परमेश्वर के लिए. I have began this series 2 weeks ago. और मैंने ये श्रृंखला 2 हफ्ते पहले शुरू की थी. It's called intimacy with वो God. है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता. Because your hunger for God, it's also function in the same way as we speak about physical hunger. और जो हमारी भूख है परमेश्वर के लिए वो वैसे ही कार्य करती है जैसे हमारी शारीरिक भूख कार्य And करती it's है. your hunger for more of God determines whether you have an intimate relationship with God or not. और आपकी भूख जितनी ज़्यादा होती है परमेश्वर के लिए वो ही चीज़ दिखाती है कि आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता चाहते हैं या नहीं है. So look at this. Here is a man called David. He is writing this scripture. Before we look at that scripture, the question is, why do so many believers have very shallow relationship with God? और यहाँ पे इससे पहले हम वचन देखें, ये सवाल है, इतने सारे विश्वासियों का परमेश्वर के साथ बहुत ऊपरी रिश्ता क्यों है? Why are they satisfied with less? क्यों वो कम के साथ ही संतुष्ट हैं? Why are they satisfied with a very mediocre life? और वो क्यों बस वो मीडियम सा बस ऊपरी रिश्ते में ही संतुष्ट हैं? We read in book of Acts, the first century believers, they wanted so much more of God and they were also reflecting the life of God. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में पहली सदी में जो कलीसिया थी वो और परमेश्वर को चाहती थी और वो अपने आप में दिखाती थी भी परमेश्वर को. Normal believer, those who were serving on the tables were used by God so mightily. और वो साधारण से विश्वासी जो मेज पे काम करते थे वो परमेश्वर के द्वारा अद्भुत तरीके से इस्तेमाल हो रहे Why थे. the 21st century believers are so settled with less, are content with more religion? और क्यों 21वीं सदी के विश्वासी कम के साथ संतुष्ट हैं, बस अपने धर्म के साथ खुश हैं?
And the answer is very simple. और जो जवाब है वो बहुत ही साधारण है. It's similarly, they have feasted upon many other things that they can't thirst or hunger for more of God. क्योंकि उन्होंने और चीज़ों को इतना अपने अंदर भर लिया है कि वो अब परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो ही नहीं पा रहे हैं. There are many factors that reveals where is our hunger for more of God. और बहुत सारी बातें हैं जो ये दर्शाती हैं कि हमारा जो भूख है परमेश्वर के लिए वो है कहाँ. And that reveals our relationship with God. और वही दिखाती है कि हमारा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ. And so we look at this morning, David writes this in Psalms 42 verse 1 to 3. और आज हम ये वचन देखेंगे जो लिखता है दाऊद भजन संहिता 42 उसका 1 से 3. It says, as the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, my God. और ऐसा लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर में का मैं प्यासा हूँ. मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा. It's actually, I have put it in an identical way for Psalm 63 underneath in Hindi, in both the slides. और मैंने भजन संहिता 63 की तरह दोनों को Because लिखा है. In Psalms 42 background, we write that this person is writing for sons of Korah, but who has written? It's actually very identical in Psalm 63. It's David who has written. और जब हम देखते हैं 42 में तो हमें नहीं पता पृष्ठभूमि कि किसने वो लिखा है, पर हम 63 में देखते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ We है. look at that, verse 3. और हम देखेंगे तीसरे वचन को. My tears have been my food, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए day हैं. and night, while people say to me all day long, where is your God? और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है. It's the same thing. Oh God, you are my God. और ये बिल्कुल वैसे लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है. Psalm 63 verse 1. जो भजन संहिता 63 1 में लिखा है. Psalms 42 1. You are my God. और वो ऐसे ही उसमें भी लिखा हुआ है कि तू मेरा परमेश्वर है. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर. मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा In अति Psalms अभिलाषी है. 42 he's saying, I long for water as the deer longs for water. और वो ऐसा कहता है कि मेरा हृदय तेरे लिए प्यासा है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है. And so you will look at, it's very identical. और हम देखते हैं कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं. At this point, David, perhaps either way, either he's running from Saul because Saul wants to kill him and he's hiding place to places. और हो सकता है इस समय दाऊद शाऊल से बच के भाग रहा हो, छुप रहा हो क्योंकि वो उसे मारना चाहता था. Or he's running from his own son, Absalom. या वो अपने खुद के बेटे अबसलोम से भाग रहा था. And he says, in my crisis, I want to go appear before God. और वो कहता है इस विपत्ति के समय में मैं परमेश्वर के आगे खड़ा होना चाहता हूँ. Let's check the level of our intimacy level. आइए हम अपनी घनिष्ठता को जांचें. When problem comes, where are you running? जब परेशानियां आती हैं आप किसके पास भागते हैं. If some problem you're facing, is your first point to go to God, or you're thinking of, oh, that man can bail me out? क्या जब आप विपत्ति से जूझते हैं आप पहले सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं या सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरी मदद करेगा. Or let me tell you, there is also in another way people relate to God, that wherever there is problem, then only they go to God, but where there is no problem, they forget God. They don't even go to God. और एक और परिस्थिति है जिसमें हम परमेश्वर के पास जाते हैं जब हमें सिर्फ परेशानी होती है, हम बस सिर्फ परमेश्वर के पास तभी जाते हैं और बाकी दिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं. I don't know what you're going through at this present time in your life this morning. और मुझे नहीं पता कि इस समय आप अपने जीवन में किस चीज से गुजर रहे हैं. God doesn't mind when we have problem and we come to Him. और परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसके पास जाएं. In fact, all of us, we came to God. और बल्कि हम सब परमेश्वर के पास आए हैं. He doesn't mind
answering and solving our situation. और वो इस चीज से परेशान नहीं होता कि वो आपकी समस्याओं को आपको हल दे या आपको जवाब दे। But just imagine if you relate with someone like this. पर आप सोचिए अगर आपका रिश्ता ऐसा ही हो किसी के That साथ, someone comes to you only when they need something. वो सिर्फ आपके पास तभी आ रहे हैं जब उनको किसी चीज की जरूरत होती And when है, you give them, they go and they forget you. और फिर जब आप उन्हें वो चीज दे देते हैं वो जाते हैं और आपको भूल जाते हैं। Even we don't like that kind of relationship. बल्कि हम भी ऐसा रिश्ता पसंद नहीं करते। And so we all start our relationship with God from that place that God answered my need and I know He is God. और हाँ, हमारा रिश्ता यहीं से शुरू होता है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी जरूरत में मेरी सुनी और मेरी मदद करी। But God is not just God who is there just to give and that's it. और सिर्फ वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ हमें देने के लिए बना है। In fact, to David, he knows very well that his God is a living God. बल्कि आज हम जानते हैं कि वो जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर His है। God is not a dead God. वो उसका परमेश्वर मृत परमेश्वर नहीं है, Which means his God desires a relationship with you. बल्कि ये परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता चाहता Which है। means he wants to talk to you. इसका मतलब वो आपसे बात करना चाहता है। Have you ever heard the verse saying pray without ceasing? और आपने वो वचन सुना है कि बिना हमें निरंतर उससे And प्रार्थना करते रहो। This was a big revelation this week. और ये एक प्रकाशन था बहुत ही बड़ा इस We हफ्ता। always thought pray without ceasing. We must not stop praying. Am I right? और हम हमेशा सोचते थे कि बिना निरंतर प्रार्थना का मतलब है कि हम बिना प्रार्थना करना रुके ही But ना। what is prayer? पर प्रार्थना होती क्या है? It's two-way communication. वो है एक दो तरीके से Which means संपर्क होना, you say and you also wait to hear from Him. कि आप बात करें परमेश्वर से और फिर इंतजार करें कि वो आपसे बात करें। Which means pray without ceasing means you should not walk a single step without hearing from Him as well. और निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है कि आप एक भी कदम ना लें उससे सुने बिना। Am I making sense? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? Which means we can't do anything in life without hearing from God. और ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं परमेश्वर से सुने बिना। David's first point to go to is his God. तो जो दाऊद का सबसे पहली बात थी कि वो परमेश्वर के पास जाता है, Because to him God is very personal. क्योंकि उसके परमेश्वर बहुत ही व्यक्तिगत है। Does David sees God at that time? क्या दाऊद देख सकता था परमेश्वर को उस समय? No. नहीं, Just like for you and I. जैसे हमारे और आपके लिए है। But he is saying, I can't wait to go to God. पर वो ऐसे कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर के पास कब जाऊं। I can't wait to appear before him. मैं इंतजार नहीं कर सकता कि कब मैं उसको अपना मुंह दिखाऊं। My soul thirsts for God, कि मेरा जो हृदय है वो उसके लिए प्यासा है, for the living God. उस जीवित परमेश्वर के लिए। You can see how hungry and thirsty for God David is. आप देख सकते हैं कि दाऊद कितना भूखा और प्यासा है परमेश्वर के लिए। But when we talk about the hunger and thirst for God, पर जब हम उस भूख और प्यास के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर के लिए होती है, we must understand what is intimacy. हमें समझने की जरूरत है कि घनिष्ठता होती क्या है। What is an intimacy or intimate relationship with God that He desires from you and I? वो क्या घनिष्ठता है, वो क्या गहरा रिश्ता है जो परमेश्वर आपसे चाहता है? What is intimacy? वो क्या है घनिष्ठता? Intimacy means close friendship or closeness. और घनिष्ठता समीपता का मतलब है कि बहुत ही करीबी रिश्ता होना, करीबी दोस्त होना। So you and I can't just come corporately and relate with Him. God desires for you to meet with Him individually. और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सभा में आके उससे रिश्ता बना सकते हैं, पर परमेश्वर आप सबसे व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है। How is your relationship with God? आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के Is साथ? it a kind of relationship with closeness? क्या वो ऐसा रिश्ता है कि जहाँ आप उसके समीप हैं? Because guess what? We all can be in a relationship. और हो सकता है कि हम सब एक रिश्ते में हों You may be in the same room, yet you feel very far. और आप शायद एक ही कमरे में हो और फिर भी आपको बहुत दूरी महसूस हो। Am I making sense? क्या आप समझ पा रहे हैं? Or the opposite is true. या जो विपरीत बात है You वो can be सच है, 3,000 kilometers from your friend, और शायद आप 3000 किलोमीटर दूर हो अपने but दोस्त yet से, you feel that you are close. पर फिर भी आप महसूस करते हैं कि आप उसके समीप हैं। Why is that? क्यों ऐसा है? Because intimacy is not spatial, means it's nothing to do with space. और क्योंकि जो घनिष्ठता है वो जो डिस्टेंस है या फासले है उससे नहीं नापी In जाती, fact, intimacy is got to do with relational. बल्कि जो घनिष्ठता है वो आपके रिश्ते पर निर्भर करती है।
So you can be in that situation. और शायद आप उस परिस्थिति में हो सकते हैं. You can come to church, you can go to every prayer, yet you feel that you are far from God. आप कलीसिया में आ सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा लगे कि Yet आप you परमेश्वर feel से दूर हैं. you are not confident to go before God. और फिर भी आपको महसूस होगा आपके अंदर भरोसा नहीं है उसके सामने जाने का. Why is that? और ऐसा क्यों है? The answer is because lack of intimacy with और God. वो इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठता है उसकी कमी है. It's quality over quantity. और वो कितना है उससे महत्व नहीं रखता पर कैसा है. And lack of intimacy is created or happens when you begin to feel that you're far from God. और ऐसी समीपता में कमी हमें तब महसूस होने जाती है कि हम परमेश्वर से दूर हैं. Firstly, you carry wrong view about God. पहली चीज कि आपके मन में जो परमेश्वर को लेके सोच है वो गलत You है. can take the duty kind of relationship. और शायद आप उसे एक कर्तव्य की तरह लें उस रिश्ते I को. can relate with my wife just as much as I need to do things in my relationship with her. और शायद मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा रिश्ता रखूं कि क्योंकि मेरा कर्तव्य है एक पति होने And का. religiosity creates that. और वो जो धार्मिकता है वो हमारे अंदर इस चीज को बनाती है. So it actually blinds you. और वो फिर आपको अंधा कर देती है. So Pharisees could not see who Jesus really is और ऐसे ही फरीसी नहीं देख पाते थे कि सच में परमेश्वर है कौन, because they didn't have intimacy. क्योंकि उनके पास घनिष्ठता नहीं थी. They must have read the word so much. और शायद उन्हें परमेश्वर का वचन बहुत पढ़ा होगा They knew the word in and out. और उन्हें अभी भी वचन पता होगा. But you see, because they didn't understand God desires relationship, पर वो ये नहीं समझते थे क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ एक रिश्ता चाहते हैं, they could not see God. इसलिए वो परमेश्वर को देख नहीं They पाते could थे not see God at work. और ना ही वो परमेश्वर को कार्य करता देख पाते And थे. one thing in our church, we really emphasize that God is a relational God. He seeks to keep relationship with you और and I. हमारी कलीसिया में एक चीज पर हम सबसे ज्यादा जोर डालते हैं कि परमेश्वर एक रिश्ता रखने वाला That परमेश्वर है. Christianity is not about a religion, but a relationship with true God, with the living God, like David was saying. और Can somebody मसीह- shout an amen? आमीन. और मसीहियत सिर्फ एक धर्म के बारे में नहीं है बल्कि वो रिश्ते के बारे में, जीवित परमेश्वर के साथ. And you know what? When you give your life to Jesus Christ and you surrender your life, you believe in Him that He died on the cross for you, you receive Him in your life. और जब आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, आप समर्पित करते हैं खुद को और विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए क्रूस पर मरा. Right from that moment, you उस समय begin. से लेकर You know, God of universe becomes a personal God for you. वो सृष्टि का परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर बन जाता He है. speaks to you. वो आपसे बात करता He है, gives you direction. वो आपको मार्गदर्शन देता है. Have you heard people say, but I don't know whether God speaks to me? आपने लोगों को बोलते हुए सुना है कि पता नहीं परमेश्वर मुझसे बोलता भी है या नहीं, Because they did not learn how God speaks to them. क्योंकि उनने वो चाहत नहीं रखी कि परमेश्वर उनसे कैसे बात करता They है. said all the prayer and they walked out. और उनने सारी प्रार्थनाएं बोली और वो बाहर आ गए. They didn't understand God, उनने परमेश्वर को समझा ही नहीं. who God is, परमेश्वर है कौन how God works. और कौन कैसे वो कार्य करता है. So intimacy is not spatial, और जो घनिष्ठता है वो दायरे या फासले पर but निर्भर नहीं है, intimacy is relational. बल्कि जो घनिष्ठता है वो रिश्ते पर निर्भर God है. desires to keep relationship with you all. और परमेश्वर चाहता है आप सब में से के साथ रिश्ता रखना. So you don't become Christian by being born in Christian family. और आपका मसीही इसलिए नहीं बने क्योंकि आप एक मसीही परिवार में पैदा हुए. You become Christian when you have an encounter with God and you surrender your life to Him, and from that very moment God becomes personal to you. और आप तब बने जब आपने परमेश्वर की आपकी मुलाकात हुई और आपने आप खुद को समर्पित किया और उस दिन से वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर बन गया. Intimacy has got to do with experiencing someone and experience of really knowing someone. The next slide. और घनिष्ठता इस बारे में कि वास्तव में किसी को जानना और ज्ञात होना और उसका अनुभव होना. So, like I said, you can know someone, but do you really know that person? और आप कह सकते हैं कि आप किसी को पहचानते हैं पर क्या आप सही में उसको In जानते the हैं. same way, और उसी तरीके से the check of your intimacy
with God, the check of your intimate relationship with और God. कैसे जांचे कि आपकी घनिष्ठता कैसी है परमेश्वर के Have साथ। you experienced God in your life? क्या आपने परमेश्वर का अनुभव किया अपने So जीवन में? I can say in 2005 I had experienced और मैं कह सकता हूँ कि 2005 में मैंने उसका अनुभव किया, when He saved me out of flood, जब उसने मुझे बाढ़ से बचाया। and lot of people just with one experience of God they get settled with God और कुछ लोग सिर्फ एक अनुभव के साथ परमेश्वर के बस खुश हो जाते हैं and they stop. और फिर वहीं पे सब कुछ So थम जाता if है। you ask them what is your testimony, brother, तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपकी गवाही है they क्या? go 15 years ago. वो 15 साल पुरानी बात But बताएंगे। what was your experience of God recently? पर आपका जो अनुभव है परमेश्वर के साथ अभी वो क्या है? Do you have stories of God working for you on behalf of you in your life now? क्या आपके पास कहानियां हैं जहाँ परमेश्वर आपकी जगह पे खड़े होकर आपके लिए कार्य कर Do रहे you हैं have अभी? stories of David seeking God when going through troubles and challenges and God came for him? क्या आपके पास ऐसी कहानियां जैसे दाऊद परमेश्वर का खोजता था अपनी परेशानियों में, परमेश्वर उसके लिए आया? Do you long or thirst for God like that from your within? क्या आप प्यासे हैं, क्या आप तरसते हैं परमेश्वर के लिए अंदर से? Does God work supernaturally in your life? क्या परमेश्वर अलौकिक तौर से आपके जीवन में कार्य In करता है? 21st century, God is still working. 21वीं सदी में परमेश्वर अब भी कार्य कर रहा He है still wants to work through people. और वो हाँ लोगों के द्वारा कार्य He करना is चाहता God, He can show up directly. है और वो ऐसा परमेश्वर है वो जो आपके सामने आ But जाएगा। when He works through His supernatural way, the glory goes to Him. जब वो Amen. अलौकिक तौर से कार्य करता है तो सारी महिमा उसको मिलती है। When आमीन। one sinner repents and believes in Him, glory goes to Him. जब Amen. एक पापी पश्चाताप करता है और उसकी ओर मुड़ता है तो उसको महिमा मिलती है। Last year, I had a dream. और पिछले साल मुझे एक स्वप्न आया In my dream, I saw my dear friend Rohit और मैंने अपने सपने में अपने दोस्त रोहित को देखा and Pastor Victor telling something about, hey, you have an assignment, you have to do this. But I'm telling them that I don't have a computer. और मैंने देखा कि पास्टर विक्टर मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें ये असाइनमेंट करना है, तुम्हें ये करना है, और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कंप्यूटर At नहीं है। that particular phase, I was really struggled that I didn't have a computer. My laptop had given up. We used that laptop in the church. The screen not working. I have no computer. और उस समय मैं इतनी परेशानी में था, ना मेरे पास कंप्यूटर था, मेरा लैपटॉप भी सही से नहीं चल रहा था, उसका स्क्रीन भी And सही I से नहीं was चल रहा था depending on God. और मैं सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर था I was looking to God. और मैं परमेश्वर की ओर देखा। I didn't go, let's swipe a card and get an EMI and get another laptop. और मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं जाता हूँ अपना कार्ड स्वाइप करता हूँ, एक EMI पे एक नया Or लैपटॉप ले if लेता I हूँ। had plenty of money, I just went and bought a computer. Glory wouldn't go to God. और अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता और मैं कंप्यूटर खरीद लेता तो परमेश्वर को महिमा नहीं Do you know मिलती। something happened? पर आपको पता है एक चीज हुई, That very morning, Pastor Victor called. उसी सुबह पास्टर विक्टर ने मुझे कॉल He said, किया। I want you to translate my book. उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी किताब का अनुवाद करो। And I said to him exactly how I saw it in dream. और मैंने उनसे वैसे ही बोला जैसा मैंने स्वप्न में देखा I said, था। I don't have a laptop. मैंने उनसे कहा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। And he said, well, we will buy one for you. उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे लिए खरीदेंगे। And they bought me a computer at home last year. और उन्होंने पिछले साल मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा। Are you able to understand when you experience God in 21st century? और आप सोच सकते हैं जब आप 21वीं सदी में परमेश्वर का I अनुभव was करते हैं so overjoyed. और मैं इतना आनंद से भर गया। It's not about material blessing. Don't और- hear me that I am speaking about that. और वो चीजों को लेके आशीषों के बारे में नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। I can give you many stories of supernaturally God intervening in my life. और मैं आपको इतनी सारी कहानियां दे सकता हूँ कि कैसे Because- अलौकिक तौर से परमेश्वर ने मेरे Because जीवन I में कार्य sought किया, God. क्योंकि मैंने परमेश्वर को खोजा। When you relate with God on an intimate level, जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में होते हैं घनिष्ठता के, do you know everything about you is supernatural and आपको पता है prophetic? हर चीज आपके बारे में जो है वो अलौकिक होती है। I have spoken to people at times, I don't even know why am I saying that, but it was like a prophetic utterance. लोगों से मैंने बात किया, मुझे नहीं पता मैं उनसे क्यों बोल रहा हूँ, पर वो एक तरीके से भविष्यवाणी थी उनके लिए। When you are in a close, intimate relationship with God, you will experience God for your life. और जब आप एक गहरे रिश्ते में होते हैं परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर को अपने लिए अनुभव And करेंगे you will experience God for others' life. और आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे दूसरों के जीवन के लिए भी। Isn't that wonderful? क्यों ये एक बहुत बड़ी खास बात नहीं? I mean, for me, best joy is to be used
for someone else. और मेरे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि मैं किसी और के लिए इस्तेमाल हूँ। If God uses me for someone else, I get overjoyed. अब जब परमेश्वर मुझे किसी और के लिए इस्तेमाल करता है तो मैं और आनंद से भर So जाता what हूँ। is your recent experience of God? तो आपका अभी का अनुभव क्या है परमेश्वर का? Do you seek God in an intimate level? क्या आप परमेश्वर को खोजते हैं उस गहराई के साथ? Because seeking God is hungry for God. और जब हम परमेश्वर को To be hunger and thirst for more of God. और परमेश्वर को खोजने का मतलब है कि उसके लिए और ज्यादा भूखा और प्यासा होना। It's not seeking blessing, it's seeking the blesser. Because when you have a blesser, you have a blessing, all the blessing. Can somebody shout an amen? आमीन। और वो आशीष को खोजना नहीं है बल्कि आशीष देने वाले को खोजना है, क्योंकि जब आपके पास आशीष देने वाला होता है तो आपके पास सारी आशीषें होती हैं। I had wisdom like I never had to handle things in my life. और मुझे ज्ञान मिला कि मुझे ज्ञान ही नहीं था कि कैसे मैं चीज़ों को संभालूं अपने जीवन में। Because like I know we all go through that journey. We had such a level of intimacy, and then we go, as if down and down and down. We all go और through हम that. सब उस दौर से गुजरते हैं जब हमारा रिश्ता इतना गहरा होता है परमेश्वर के साथ, और फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। I used to be so there. I know those days. और मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा करीब था परमेश्वर के। And does it mean the pressures and the challenges in life was not there? और ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन के संघर्ष वहाँ नहीं थे। In fact, in midst of that, God taught me how David was learning things from his pressures of life. When can I appear before God? और वैसे ही दाऊद की तरह उन परेशानियों में मैंने सीखा कैसे, जैसे दाऊद ने सीखा कि कब मैं परमेश्वर के आगे जाके खड़ा हो सकता हूँ। Intimate relationship is experiencing God now in your circumstances. और वो गहरा रिश्ता मतलब है परमेश्वर को अभी अपनी परिस्थितियों में अनुभव करना। If you're going through financial crisis, stop praying for finances. तो जब आप आर्थिक स्थिति और परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आप पैसों के लिए प्रार्थना ना करें। If you're praying for finances, you are seeking finances. You are not seeking God. क्योंकि अगर आप पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पैसे खोज रहे हैं, ना कि परमेश्वर को खोज रहे Are हैं। you able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? But when you say, Lord, I don't even give a care whether Absalom is after me or Saul is after me, I want to seek you, God. और जब आप उसको खोजते हैं, आप कहते हैं चाहे अबसलोम मेरे पीछे हो या शाऊल मेरे पीछे हो, मैं आप ही को खोजूंगा प्रभु। Then David emerges. और फिर वहाँ पे हमारे अंदर से दाऊद में आता And है। that's what I'm helping you to understand. और यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें। You see, whether car is there, not there, laptop is there, not there, Lord, I want to seek you. चाहे आपके पास गाड़ी हो ना हो, कंप्यूटर लैपटॉप हो या ना हो, परमेश्वर मैं आपको खोजना चाहता हूँ। When you do that, God shows up. जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए हाजिर होता है। So that was just about intimacy. और ये सिर्फ घनिष्ठता के बारे में We've था। not spoke about the hunger for more. और अब मैं बात करूंगा कि हम कैसे और भूखे हो सकते हैं Are उसके you लिए। hungry for God? क्या आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं Like David. उस दाऊद की तरह? If you're hungry, अगर आप भूखे हैं, because being hunger for God, you are willing to do anything to know who God is. और जब आप उसके लिए भूखे होते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं ये जानने के लिए कि परमेश्वर है कौन। You are willing to go extra mile. आप और ज्यादा दूरी तय करने के लिए तैयार होते Nobody हैं। has to teach you. किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं होती। Nobody even has to tell you, come to church. और ना ही किसी को बताने की जरूरत है कि तुम कलीसिया में आओ। Because when you are hungry for God, क्योंकि जब आप भूखे होते हैं परमेश्वर के लिए, for the living God, उस जीवित परमेश्वर के लिए। amen, our God is living God. आमीन, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है He seeks relationship with और वो you. रिश्ता चाहता है हमारे साथ। Then you say, when can I appear before God? आप यही कहेंगे मैं कब परमेश्वर तेरे को आके अपना मुंह I can दिखाऊं। imagine David quickly running in the cave and having this conversation. और मैं before सोच सकता हूँ दाऊद जल्दी से भागा होगा गुफा में और ये वार्तालाप कर रहा होगा। God. He ran from places to places. और वो एक जगह से दूसरी जगह भागता था। He said, when can I quietly go before God? वो यही सोच रहा था कब मैं शांति से परमेश्वर के आगे खड़ा हो सकूं। Do you go to God like that? क्या आप परमेश्वर के पास ऐसे ही जाते हैं? How is your relationship with God? आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के Do you साथ? hunger for David, like how David is hungry for क्या God? आप भूखे हैं परमेश्वर के लिए जैसे दाऊद था? Are you thirsty for God? क्या आप प्यासे हैं परमेश्वर के लिए? Because I want to show you what is happening in our generation. क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी में हो क्या I रहा want to है। show you what's happening now. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब क्या हो रहा है। Because
Oh, this is not working. Next slide, please. Because Proverbs 27 verse 7 says this. क्योंकि नीति वचन 27 का 7 ये कहता है. Can you read with me first in English then in Hindi? क्या आप मेरे साथ पहले इंग्लिश फिर हिंदी में पढ़ सकते Can you हैं? read loudly? क्या आप जोर से पढ़ सकते हैं? A satisfied soul loathes the honeycomb, but the hungry soul, every bitter thing is sweet. और संतुष्ट होने पर मधु का Okay, छत्ता let's भी read it in Hindi also. संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है. I want to teach you something very important. मैं आप सबको एक बहुत ही जरूरी चीज सिखाना With चाहता that हूँ. simple illustration that I began. और एक छोटे से इलस्ट्रेशन के साथ जिससे मैंने शुरू किया था. What you hunger for is what you feed upon. जिस चीज के लिए आप भूखे हैं आप उसी को लेते हैं. So remember, David says, "My soul thirsts for God." और आपको याद होगा कि दाऊद कहता है कि मेरा हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा है. What is Proverbs 27 verse 7 teaching us? तो नीति वचन 27 का 7 हमें क्या सिखा रहा है? That a satisfied soul loathes the honeycomb. कि एक संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है. It's like you had plenty of honey and now someone presenting you more honey. इसका मतलब है कि आपने बहुत सारा मधु खा लिया है और फिर अब आपको कोई और मधु खाने को दे What रहा will है. you say? आप क्या कहेंगे? I'm satisfied. आप कहेंगे मैं संतुष्ट हो चुका हूँ. So the question is, तो सवाल ये है what are you feeding your soul with? कि आप अपने हृदय को किस चीज से भर रहे हैं. And if something else is given to you and you are full, और अगर कोई और चीज आपको दी जा रही है और आप संतुष्ट हैं then you don't need anything. तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. But to a hungry soul, पर जो एक भूखा इंसान है, now listen to this very carefully. आप इसको बहुत To a hungry soul, कि एक भूखे को you give any bitter thing. आप कोई भी कड़वी चीज दे I'm दो. giving you karela. मैं आपको करेला दे रहा हूँ You'll eat it? I'm hungry. Please give me anything. कि मैं भूखा हूँ तो मैं कुछ भी खा लूंगा. There's something very important यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है, for us to note. इस बात को समझना है. In today's generation, people, next slide, कि आज की पीढ़ी में people are being satisfied with lot of things. सारे लोग बहुत सारी चीजों से संतुष्ट हैं. An average young people between 20 to 35 years और ज्यादातर जवान लोग 20 से 35 साल के बीच में उम्र वाले spends 57.5 hours वो 57.5 घंटे on screen. स्क्रीन पे बताते हैं. 57.5 घंटे. 57.5. 57.5. How many hours there in whole week? एक पूरे सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? 24 into 7 would be the maths. Who are the great ones in maths? 168 or I don't know what. I was trying to do it, but I forgot that. But can you believe half a week you are spending on screen? और आप देखते हैं कि आधा हफ्ता आप फोन पर बिता रहे हैं. Is that true? क्या ये सच है? What are you feeding upon? आप किस चीज से खुद को भर रहे हैं? Junk. आप बेकार चीजों What से the खुद को भर world रहे हैं. has to offer. वो सारी चीजें जो दुनिया And आपको so दे रही if है, you're feeding upon that, और अगर आप उससे भर रहे हैं खुद को, according to Proverbs, तो नीति वचन के हिसाब से if honeycomb is given to you, अगर आपको शहद दिया जाए, you say, I don't. मुझे नहीं चाहिए. Do you know that when Hebrews, people of Israel, whenever their child said a scripture verse, they would give a honey to them. और आपको पता है इब्रानियों लोगों के जो बच्चे होते थे, जब भी वो एक वचन बोलते थे परमेश्वर से, तो लोग उन्हें
शहद देते थे, to teach them that the word of God is sweet. ये सिखाने के लिए कि जो परमेश्वर का वचन है वो मीठा है। No wonder David says in Psalms 119, और एक कोई बड़ी बात नहीं है कि दाऊद ऐसा 119 में बोलता है, your word is sweeter than honey. वो ऐसा कहता है कि तेरा वचन शहद से Can भी you ज्यादा मीठा है। imagine how David has experienced God so personally? क्या आप सोच सकते हैं कि दाऊद ने इतने व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर का And अनुभव he has किया है experienced the word of God so sweeter than honey. और उसने अनुभव किया कि परमेश्वर का जो वचन है वो शहद से भी ज्यादा And मीठा that's है। exactly happening in now our generation. और ऐसा ही हो रहा है हमारी पीढ़ी। Because first thing people wake up is go to their phone and check out what's the status, what's been uploaded in Instagram, and they get bombarded. They are feeding their soul with junk. और वो सुबह सबसे पहले उठते हैं, देखते हैं कि स्टेटस क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या डला हुआ है, और वो अपने आप को सारी खराब चीजों से भर रहे हैं। Even you pick up, perhaps you're watching good things, maybe you're listening to the quote of the day, or you're checking out the quote of the day. If it's not rooted in God, it can be great, philosophy, but it is not proven the wisdom of God. और हो सकता है आप सुबह उठते हो और आप अच्छी चीज़ें करते हो, शायद कोट ऑफ द डे पढ़ते हो, पर अगर वो परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़ा है, चाहे वो कितना भी अच्छी बात हो, वो किसी फायदे की नहीं। When television came out, people started spending 70 plus hours in particular region. और जब टीवी आया तो 70 से ज़्यादा घंटे लोग उस जगह पे बिताते थे। And young people were not spending time with the real word. और परमेश्वर के वचन के साथ जवान लोग उतना समय नहीं बिता रहे थे। Because when you are hungry and you are satisfying with something else, and if someone comes to you and tell you, hey, read the Bible, it's so good, you know that you will gain some wisdom. जब आप भूखे होते हैं और किसी और चीज से संतुष्ट कर गए होते हैं, तो आपको अगर कहा जाए कि आपको वचन पढ़ना है, तो You say, आपको oh, Bible is boring. तो आप कहेंगे कि वचन बहुत ही बोरिंग है। Can you imagine if people started spending time 57 hours in the Bible, what will happen? You tell me the result. आप सोचिए, इतने ही घंटे अगर लोग वचन में बिताने लग जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। Can you tell me? What will be the result? क्या आप सोच सकते हैं उसका परिणाम I mean, होगा the क्या? word of God will begin to really shape that person. और परमेश्वर का वचन सही में उस व्यक्ति And को आकार देने लग I जाएगा। had been in that intimate relationship with God. और हाँ, मैं उस घनिष्ठ रिश्ते में रहा हूँ परमेश्वर I के mean, साथ। this is perhaps my third personal Bible, but if you see, my first personal Bible was full of highlights, full of underline, and full of notes. और ये मेरी तीसरी व्यक्तिगत बाइबल है, पर अगर आप मेरी पहली बाइबल देखेंगे तो वो पूरी हाईलाइट से और नोट से भरी हुई I है। had spent so much time that I knew that on this side of the page is written, call to me and I will answer you. और मुझे इतना वचन पता था कि मैं इस तरफ, मुझे पता था इस तरफ पेज पे ये लिखा है And कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। God would speak to me not only for my life but for others' life. God would give me exact scripture verse. और परमेश्वर सिर्फ मुझसे मेरे जीवन के नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी बात करता था। वो मुझे वही आयत देता He था would show me exact scripture verse. और वो मुझे वही आयत दिखाता था। Like you, when I was a part of a church, I would wait in coffee time to go to someone and then just say that, hey brother, I don't know. This is what the scripture God is telling me. I don't know whether it makes sense to you or not, but this is what God is telling me. तो जब मैं ऐसी कलीसिया में आता था, कॉफी टाइम में मैं जाता तो मैं किसी से कहता था, भाई परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहता है, मुझे And नहीं पता ये आपको समझ आ रहा है या Because नहीं। of my intimate level of relationship with God and hunger and thirst for God, others were began to be blessed. और मेरे उस घनिष्ठ रिश्ते के द्वारा जो मेरा परमेश्वर के साथ था, दूसरे लोग भी आशीषित हो रहे थे। You see, if we don't feed upon this, then you give anything, bitter thing is become sweet to you. और अगर हम इस चीज़ का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप हमें कोई भी और चीज़ दे दीजिए, वो हमें अच्छी लगेगी। Your soul is made to, is made to bring before God and fill with the things of God. और आपको इसलिए बनाया गया है कि आप परमेश्वर के आगे आएं और परमेश्वर की चीज़ों का सेवन करें और उससे भरे जाएं। Because what happens when you feed with junk? और क्या होता है जब आप खराब चीज़ों से खुद को भरते हैं? When you're going to watch so many videos or so many reels only about how
to be honest, that's also fake life because they are not putting the whole truth. They are showing that I'm on a holiday in Mauritius, but their life is full of mess. और हो सकता है आप जब अपने आप को ये सारी रील्स देखेंगे जो कि उनका झूठा जीवन है, क्यों दिखा रहे हैं वो एक छुट्टी पर है मॉरिशस में, पर हमको पता है हमें नहीं पता उनके जीवन में कितनी Okay, I परेशानियां हैं. saw a very funny post. The same husband and wife, half an hour before fighting and arguing, the same half an hour later they are taking a nice selfie and showing like everything is great in this और relationship. मैंने बहुत अच्छा पोस्ट देखा कि जो एक मियाँ बीवी हैं, आधे घंटे पहले वो बहुत लड़ रहे हैं और उसके आधे घंटे बाद वो एक अच्छी सी पिक्चर लेके डाल रहे हैं. So when we keep on feeding upon people having holidays, wow, people traveling, oh wow, what happens to us? और जब हम अपने आप को बस इन चीज़ों से भर रहे हैं कि वाह लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, लोग सफ़र कर The रहे very हैं, thing we are feeding, the very thing we are more hungry about. और अब हम जिस चीज़ का सेवन कर रहे हैं अब हम उसी चीज़ के लिए भूखे हैं. If you begin to hunger for God, अगर आप परमेश्वर के लिए भूखा होना शुरू कर दें, I did not want, even now I don't want mediocre Christian life. और अगर मैं अब भी नहीं चाहता कि I want fresh stories of God. मुझे वो पुरानी कहानियाँ नहीं चाहिए, मुझे नई ताज़ी कहानियाँ चाहिए परमेश्वर Because के out बारे of में. fresh story, I began to teach others how to be dependent on God. और उन्हीं नई कहानियों के साथ मैं सिखा सकता हूँ दूसरों को कि कैसे परमेश्वर पर निर्भर It's रहें. from those places I learn more about God. उन्हीं जगहों से मैंने और सीखा है परमेश्वर के Because बारे to में. be honest, even now I don't think I fully know about God. क्योंकि आज तक भी अगर मैं सच बोलूं मुझे नहीं लगता मैं पूरी तरीके से परमेश्वर को जानता हूँ. But when you say I know fully about God, पर अगर आप कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ परमेश्वर के बारे or में I don't need another connect group, और मुझे एक नए कनेक्ट ग्रुप की जरूरत नहीं I है know the Bible. और मुझे वचन पता है Oh, I know fully. और मुझे पूरा वचन पता है. It somewhere gives an indication about you are satisfied with something else. और वो साफ साफ दर्शाता है कि आप किसी और चीज़ से संतुष्ट हैं. When you don't want to show up to church, जब आप कलीसिया में नहीं आना चाहते and it's not about just getting you to church, और ये सिर्फ आपको कलीसिया में बुलाने के लिए नहीं है, maybe you are getting satisfied with mediocre Christianity. और शायद आप बस संतुष्ट हैं वो ऊपरी मसीहियत से. Maybe world is attracting to you. शायद दुनिया आपको ज़्यादा आकर्षित कर रही है. There was a church in Laodicea in Revelation. और लोदीकिया की कलीसिया है प्रकाशित वाक्य में, In Revelation chapter 3. और वो है प्रकाशित वाक्य 3 में. Do you know, before this verse, the previous verse, that's not there. I'm going to come to this verse. But what Jesus speaks about this church? और इससे पिछले वाला वचन यहाँ दे नहीं रखा, पर क्या परमेश्वर बोलता है इस कलीसिया के He बारे में. says, "Hear my words, the faithful one and the true witness." और वो कहता है कि सच्चे और विश्वास योग्य गवाह, तुम मेरी ये बात सुनो. Faithful means he is going to be faithful to you. और विश्वास योग्य का मतलब वो आपके लिए विश्वास योग्य True होगा. one means he is going to give you the truth whether you like it or not. और सच्चा का मतलब वो आपको सत्य देगा चाहे आपको वो पसंद हो या Jesus ना हो. says, "You are become lukewarm." वो कहता है कि तुम गुनगुने हो चुके हो. I wish you would be either cold or hot. वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि या तो तुम बिल्कुल ही ठंडे होते या तुम गर्म होते. I wish you would be either one. कि मैं चाहता हूँ कि काश तुम ऐसे होते या वैसे But होते. because you are lukewarm, पर क्योंकि तुम गुनगुने हो, I feel like to spit you out. मैं तुम्हें उगलने पर हूँ. I don't like the lukewarmness. मुझे वो गुनगुनापन पसंद नहीं है. Why they were lukewarm in their relationship? क्यों वो गुनगुने थे अपने रिश्ते में परमेश्वर के साथ? Why they had reached to that level? क्यों वो कैसे वो स्तर तक पहुंच गए? I wish they were at least one, either cold or hot. और वो परमेश्वर चाहता था या तो वो बिल्कुल ठंडे हो या वो गर्म हो. Jesus wished at least you would be completely cold. At least I know how to get you completely hot. और शायद यीशु मसीह चाहते थे कि शायद तुम ठंडे होते तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से गर्म बना सकूं. They reached to that place because something they were feeding their soul with. पर वो उस जगह पर पहुंचे क्योंकि वो अपने प्राण को किसी और चीज से भर रहे थे. That they got satisfied. और फिर वो उससे ही संतुष्ट हो गए. What was that? और वो क्या चीज थी? Because Jesus says, because you say I'm rich, और तू कहता है कि मैं धनी हूँ have become wealthy, और मैं धनवान हो गया हूँ and I don't need anything. और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है.
You see why, I don't know, even when you follow God wholeheartedly, you keep on going through hardships and challenges. I want to think that way we still stay close to God. और मुझे लगता है जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़ रहे होते हैं और Because- आप परेशानियों से ही गुजरते रहते हैं, मुझे लगता है इस तरीके से भी आप Because परमेश्वर we के are all करीब हैं, human. क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। Even me, when so many issues are happening, I will go to pray before God. और शायद मैं भी, जब मेरे साथ बहुत सारी परेशानी होती है तो मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने जाता हूँ। You see, when things were so well, पर जो देखते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी जब हैं, geographically, Laodicea was rich. और अगर देखा जगह की तौर पे, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा उनके बहुत ही धनवान थे, They had money, उनके पास पैसा था, but they were still poor. पर वो फिर भी कंगाल थे। What does it remind you? वो आपको किस चीज़ की याद दिलाता है? Last Sunday's Dr. Abhishek's message. जो पिछले संडे डॉक्टर अभिषेक ने मैसेज दिया, You can be rich, आप अमीर हो सकते हैं but poor in God's eyes. और फिर भी परमेश्वर की नज़र में आप कंगाल हो। You may have everything, शायद आपके पास सब कुछ हो, but how God measures richness is different. पर परमेश्वर कैसे उस रईसी को नापता है वो अलग है, Because they were satisfied. क्योंकि वो संतुष्ट थे। In our today's current generation or current times for believers, आज के समय में, आज की पीढ़ी में विश्वासियों के लिए people are looking at world वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। and now they are comparing with world. अब वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दुनिया के साथ। Do you know money will not buy you many things? आपको पता है पैसे से आपको बहुत सारी चीजें नहीं I'll मिलेंगी, guarantee you will have money because you are thinking that path is right. I should earn everything and then have everything. I और will आपको not, लगता होगा मैं शायद उस मार्ग में जाऊं, मैं सब कुछ कमाऊं, मेरे पास सब and कुछ होगा I will have a peaceful life. और मेरी जीवन शायद शांति से भरा You हो। will be on that road, but you will find that road is dead end. पर आप उस रास्ते पे होगे और आपको पता चलेगा Because- वो रास्ता बंद है, Because I guarantee you, money will not bring peace. क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पैसा शांति नहीं दे सकता। If you ask the richest person in India, what would you need? One thing, he would ask, I want peace. I have everything. अगर आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति से पूछे कि आपको एक चीज क्या चाहिए, वो कहेगा कि मुझे शांति चाहिए। So the church in Laodicea had wealth, had money, was satisfied, और लोदीकिया की जो कलीसिया थी वो धनवान थी और संतुष्ट थी, yet they missed on to be hungry for more of God. पर वो फिर भी चूक गए और भूखा होने के लिए परमेश्वर के लिए। You think David was poor? आपको लगता है दाऊद गरीब था? Do you think David was poor? क्या आपको लगता है दाऊद गरीब था? You think David only sought God because he wanted to be king or to be with wealth or money or to reach that power? और आपको क्या लगता है वो परमेश्वर को सिर्फ इसलिए खोजता था क्योंकि उसे राजा बनना था, या उसे वो सामर्थ चाहिए थी, या उसे जगह पे पहुंचना था? You look at the next slide. आप दूसरी साइड में देखेंगे, David had so much of money. दाऊद के पास बहुत सारी In संपत्ति थी। 1 Chronicles 22:14, और एक इतिहास 22:14 में he was not satisfied with money or position. ना ही वो संपत्ति से और ना ही वो पैसों से संतुष्ट था। What is he saying? वो क्या कहता है? I am giving 4,000 tons of gold, 40,000 tons of silver, and so much of bronze to build this temple. सुन, मैं अपने कष्ट के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख की कार सोना और 10 लाख की कार चांदी और पीतल और लोहे इतना इकट्ठा किया है, He was still not satisfied और वो फिर भी संतुष्ट नहीं था, because this position, this much money did not make him satisfied. He knew his soul thirst for God. वो स्थान और इतनी संपत्ति भी उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो जानता था उसका You know, प्राण next परमेश्वर slide. के लिए प्यासा है। You know what he says? और फिर आप देखते हैं कि वो क्या बोलता है, Psalms 86:1. भजन संहिता 86:1 में, Oh Lord, I am poor and needy. हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र You हूँ। think David is poor? आपको क्या लगता है कि दाऊद दरिद्र था? Like Laodicea church, लोदीकिया की कलीसिया की oh, I तरह have arrived, I am king now.
वो ये सोच सकता था कि अब मेरे पास सब कुछ है, मैं If राजा you हूँ। read your Bible, he said, how can I sleep? My God doesn't have a house. I want to build a house. आप देखेंगे अगर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे वो कहेंगे मैं कैसे सो सकता हूँ, मेरे परमेश्वर के पास एक भवन ही नहीं So है। this is an indicator. तो ये एक चीज को दर्शाता है, When you are hungry for God, जब आप परमेश्वर के लिए भूखे होते all हैं, you will think is God in your mind. आप हर बात जो सोचेंगे सिर्फ परमेश्वर के I बारे में। remember those days. और मैं उन दिनों को याद रख करता हूँ, Even now, I know when I'm driving, I'm thinking about God. और अभी भी जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो मैं परमेश्वर के बारे में I'm सोच रहा हूँ, thinking about Scripture. और मैं परमेश्वर के वचन के बारे में सोच रहा होता हूँ। In my retention, only God is there. मेरे जो दिमाग है, मेरी सोच में सिर्फ परमेश्वर है। It's like when I fell in love with Tressa, और वो तब समय था जब मैं प्रेम में गिरा ट्रेसा के साथ, all I thought about Tressa. मैं सिर्फ ट्रेसा के बारे में ही सोचता That था। shows the indication level of love for Tressa. और वो दर्शाता है कि मैं कितना प्रेम करता था In ट्रेसा the से। same way, और इसी तरीके से to David, anything could not replace, any junk could not replace his soul really thirst for God. दाऊद के लिए और कोई चीज जगह नहीं ले सकती थी। सच में उसका हृदय परमेश्वर So, के लिए ही प्यासा what था। would you say to about your intimacy and your hunger for God today? और आप क्या बोल सकते हैं अपनी घनिष्ठता और अपनी भूख के बारे में परमेश्वर के लिए Do आज? you hunger for God? क्या आप भूखे हैं परमेश्वर के लिए How आज? is your relationship with God? आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ? Next slide. और अगली स्लाइड देखेंगे। In you know, to Philippians, Paul says that about speaking about unbelievers, but sometimes what sad part is that believers are trying to live or copying the life of unbelievers. और हम ये देखते हैं कि ये अविश्वासियों के बारे में, पर कभी कभी हम उनके जीवन को जीना चाहते हैं। To unbelievers, Paul was saying that whose end is destruction, whose God has become their belly. और वो कहता है कि जिनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर उनका पेट है, Whose glory is in their shame, और उनकी जो लज्जा की बातें हैं उन पर वो एक घमंड करते who हैं, set their mind on earthly और things. पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। How would believers should live life? और एक विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए? Definitely not for just for 9 to 6 job. और वो सिर्फ 9 से 6 के जॉब नौकरी के लिए नहीं, Definitely not for the stomach, और ना ही अपने पेट के लिए, but for the purpose and destiny God wants you to achieve. पर उस उद्देश्य के लिए और नीति के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि आप Definitely पूरा not करें। just for career. और ना ही सिर्फ करियर के लिए। Yes, those things are important. I'm हाँ, not वो saying सारी that. चीजें जरूरी हैं। I'm not saying you all come join full-time ministry. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब आके फुल टाइम मिनिस्ट्री ज्वाइन करिए, But are you living to please God? पर क्या आप जी रहे हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए? Is God in your topmost agenda? क्या परमेश्वर सबसे प्रथम स्थान रखता है आपके Do जीवन में? you inquire God? क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं? If people, for them, the job, the worldly things becomes their God. और लोगों के लिए उनकी नौकरियां और ये दुनियावी चीजें उनका परमेश्वर बन जाती हैं, Pleasure becomes God. और उनकी अभिलाषाएं उनका परमेश्वर बन जाती हैं, And they glory. They, exchange their glory in their shame. और वो अपनी लज्जा की जगह लज्जा पर ही घमंड करने लग जाते हैं। We must not set our mind on things of below. और हमें नीचे की चीजों में अपना मन नहीं लगाना In है। fact, do you know 80 years you have an opportunity how your eternity will reflect? और आपके पास 80 साल है जानने के लिए कि आपके अनंत जीवन कैसा होगा। What will you have for eternity? क्या होगा आपके पास अनंत काल The के लिए? opportunity is in this 80 years. जो ये 80 साल में आपके पास अवसर हैं। I always give this picture like this. मैं हमेशा ये दृश्य आपको दर्शाता हूँ। You work 80 years to build a house, right? आप 80 साल लगाते हैं घर बनाने के लिए। Okay, let's say you build take 30 years आप कह सकते हैं आपने 30 साल लगाए, and you live 50 more years and you die. और उसके बाद आप 50 और साल जीते हैं और फिर आपकी But मृत्यु हो you जाती है। don't do anything for eternity. पर आप कुछ नहीं करते हैं अनंत काल के लिए, How? You've not even done anything to build a house there. और आपने कुछ भी नहीं करा है कि आप वहां पर अपना घर बना सकें। How will that be? वो कैसा लगेगा? You're gonna be without house for eternity, no आप time. बिना घर के अनंत काल में रहेंगे, You work hard to buy a Mercedes here on earth. और आप बहुत मेहनत करते हैं कि आप इस पृथ्वी पर एक But मर्सिडीज you खरीदें, didn't do anything to have some vehicle to move around. I know in heaven we will not have vehicle, but
I'm just giving you an understanding. पर मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हाँ स्वर्ग में कोई गाड़ी नहीं होगी, So, पर वहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं Stop होगा। living for 9 to 6 तो आप अपने 9 से 6 की नौकरी के लिए just जीना for छोड़ the दें, career. सिर्फ करियर के लिए जीना छोड़ Ask दें God what God has called. और पूछिए परमेश्वर आपने किस चीज के लिए मुझे बुलाहट दी है। और हमारा सच्चा उद्देश्य जब पाया जाता है जब हम उसके लिए चीजें करते हैं। मेरे पास भी एक करियर था और सबसे ज्यादा आनंद मैंने इसमें पाया कि मैं परमेश्वर के लिए कैसी चीजें करता हूँ। Slide left. Can you go to next slide? क्या आप अगली स्लाइड में जा सकते हैं? And this is our current times. और ये आज का समय है, We are in the last days. हम अंतिम दिनों में हैं This is speaks about the last days. और ये अंत के दिनों के बारे में बात हो You रही see, है। in the last days, there comes a times of difficulty, और ये समय रख के अंतिम दिनों में कठिन समय and आएंगे people are hungry or junking on all these things. और वो भूखे होंगे लोग और इन सारी चीजों का सेवन कर रहे होंगे। Number one, they are lovers of themselves. पहली चीज कि वो मनुष्य स्वार्थी होंगे। Are we not living in the last days? क्या हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं? You stand in the queue, you will see everyone wants to come first. आप एक लाइन में खड़े हुए और सब आगे खड़े होंगे। People would be lovers of money. और लोग लोभी होंगे, They would be proud, वो डींग मार होंगे, arrogant, अभिमानी होंगे, abusive, निंदक होंगे, disobedient to their parents. माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, Unholy, अपवित्र, heartless, दया रहित, unappeasable, क्षमा रहित, slanderous, दोष लगाने वाले, without self-control, असंयमी, brutal, कठोर, not loving good. भले के बैरी। I knew that the author Paul could have continued writing so many things. और मैं जानता हूँ कि पौलुस और भी बातें लिख सकता था। Swollen pride, और वो घमंडी होंगे covers the lovers of pleasure rather than lovers of God. और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। That line in the red describes believers. और ये जो लाल जो लाइन लिखी है वो विश्वासियों को दिखाती है। Having the appearance of वे godliness, भक्ति का भेष तो धरेंगे but denying its power. पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। Saying the exact everything, कि सब कुछ वैसा ही लगेगा but no power of God in them. पर परमेश्वर की कोई सामर्थ नहीं होगी No उनके अंदर, change in them. ना ही कोई बदलाव होगा। They are having a form of godliness, हाँ वो एक भक्ति का भेष तो धरेंगे but denying its power. पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। In the last days, आखिरी दिनों में people will be lovers of something else than lovers of God. और अंत के दिनों में लोग परमेश्वर की जगह किसी और चीज के प्रेमी होंगे। Today is your heart check time. आज आपके हृदय को जांचने का Do you समय है। love God with all your heart? क्या आप परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करते Do हैं? you desire to get into an intimate relationship with Him? क्या आप चाहते हैं कि आप उसके साथ एक गहरे रिश्ते में बढ़ें? Whether He answer your prayer or not, do you still have God as topmost loving relationship? for चाहे you? वो आपकी प्रार्थना को उत्तर दे या ना दे, वो सबसे प्रथम स्थान रखता Do है you या get नहीं रखता upset आपके if He doesn't answer your prayer? जीवन? क्या आप दुखी हो जाते हैं कि अगर उसने आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया? Are you seeking God? क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? In the last days, आखिरी दिनों में love of many will grow cold. बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Are you feeding upon the real honeycomb? क्या आप उस सच में मधु के छत्ते पर का सेवन ले रहे हैं? Are you satisfying yourself with God? क्या आप अपने आप को परमेश्वर से संतुष्ट कर रहे हैं? Because if you do, it will change you. अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको परिवर्तित कर You देगा। will no longer be the same. आप पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। If you ask one of my friend who had seen me then and seen me now, and he will say, "Hey, you have changed." अगर आप मेरे कब तब के दोस्त से पूछे जिसने मुझे तब देखा था और अब देखा, वो यही कहेगा कि तुम बदल गए हो। I was fearful, shy, introvert, wouldn't even aspire to do things in life. और मैं बहुत ही अंतर्मुखी था, बहुत ही डरता था और मैं शर्माता था। But God came and changed me. पर परमेश्वर आया, उसने मुझे बदल दिया। In secret, I was full of doing evil things,
some of these things also. और गुप्त में मैं ये सारी चीज़ें करता था, बहुत ही दुष्टता की चीज़ें करता था। I was having a form of godliness. और हाँ, मैंने एक भक्ति का भेष धारण तो किया था। God came and met me. परमेश्वर ने आके मुझसे मुलाकात की, His word met me, उसके वचन ने मुझसे मुलाकात की, caught me. उसने मुझे पकड़ लिया And I said, hey, I got to change. और मैंने कहा कि नहीं, मुझे बदलने की ज़रूरत है। And His power changed me. और उसकी सामर्थ ने मुझे बदला। This morning, इस सुबह how hungry are you for God? कितने भूखे हैं आप परमेश्वर के लिए? The next slide. अगली साइड में देखेंगे। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, They will be satisfied. क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। If you carry righteousness, अगर आप धार्मिकता में चल रहे हैं, which we all do because of Jesus' free gift of righteousness, क्योंकि हम सब कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में वो धार्मिकता but दी। when we grow in that पर righteousness, जब हम उस पवित्रता में बढ़ते जाते हैं we hunger for God's kingdom rather than money, other things. और हम परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे होते हैं, ना कि और चीज़ों के। Matthew 6:33. मत्ती Seek the 6 kingdom of God first. कि ऐसे कहता है कि उसके धर्म और राज की खोज All this करो, will be added to you. ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। If you hunger and thirst for God, अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे you हैं, will function from satisfaction. आप संतुष्टि की जगह से कार्य करेंगे। Then you know what happens? और आपको पता है फिर क्या होता है? Someone says, hey, let's have alcohol. कोई आपसे कहेगा कि चलो हम शराब पीते हैं, You say, no, I'm satisfied. आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। The enemy brings your weakness, और परमेश्वर आपके सामने आपकी कमजोरी लेकर your आता है, temptations. और वो सारी अभिलाषाएं लेकर आता है। Hey, you don't have car. Why don't you swipe a credit card and get something? और तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, और क्यों ना तुम अपना कार्ड स्वाइप करो और उसे खरीद लो, Hey, get this, get that. कि ये लो और वो ले आओ। My satisfaction doesn't come from this. और मेरी संतुष्टि इन सारी चीजों से When नहीं आती। someone doesn't treat you, you function from, oh, they rejected me, they did not honor me, they did not say to me this, that. और हम कभी कभी इस जगह से कार्य करते हैं कि उन्हें मेरा तिरस्कार किया। My satisfaction is not in that. मेरा संतुष्टि उस चीज में नहीं है। I'm not even satisfied whether they will speak a lot of good things about me or a lot of bad things about और me. ना ही मैं संतुष्ट कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बोलेंगे या बहुत बुरी बातें Because बोलेंगे, you live from above, क्योंकि not आप from ऊपर beneath. ही जीवन जी रहे होते हैं, ना कि नीचे से। Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित हैं सुबह? What was something left last? Yeah, this was the statement. Hunger is the determining factor whether or not you will pursue intimacy with God. और भूख ये निर्धारित करने वाली कारक है कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का अनुसरण करेंगे या नहीं करेंगे। The previous slide was, I think, what you hunger, or you will hunger on what you feed upon. तुम जो खाओगे उसी से भूखे रहोगे। If you hunger more of God, you will feed upon God. तो अगर आप और ज्यादा भूखे होंगे परमेश्वर के लिए, तो आप परमेश्वर का If सेवन you're करेंगे। feeding upon junk of the world, अगर you आप- will be more hungry for the same. अगर आप दुनिया के कूड़ा करकट के लिए भूखे हैं, तो आप उसी को खाएंगे। Can you close your eyes? क्या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? We close this service, और हम इस सर्विस को खत्म करेंगे, but we respond to what we've heard. और हम उस चीज की तरफ रिस्पॉन्ड करें जो हमने सोची है।